हेलो दोस्तों, मैं समाधान काले आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज, हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं द थ्योरी ऑफ सिंगल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एमएससी फर्स्ट ईयर का फोर्थ चैप्टर है गाइज। ओके। सो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी गाइज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज। So this is our chapter number fourth, that is theory of single linear transformation. Now firstly we will see the basic concepts, okay, that we have learned. हमने जो basic concept पढ़ी है वो पहले हम थोड़ा सा उसका रिव्यू करेंगे। तो देखो, first let F denotes an arbitrary field and V be the finite dimensional vector space over the F. Okay, yeah, we know all these. Okay, that is F is a arbitrary field and V is a finite dimensional vector space defined on that field F. Then this set L of VV, okay, is a vector space over F. This is also know, हमें ये भी पता है कि L of VV क्या होता है, it is a vector space होता है and it is over the field F होता है, okay. And if we select a basis that is V1, V2, Vn of vector space V, then the mapping which assigns to T belongs to L of VV, okay, its matrix with respect to the basis that is V1, V2, Vn is an isomorphism of the vector space L of VV, okay. So इसका मतलब क्या हुआ गाइज, अगर हम बेसिस सिलेक्ट करेंगे V1, V2, Vn, ओके, वेक्टर स्पेस V का बेसिस सिलेक्ट करेंगे V1, V2, Vn, देन द मैपिंग, ऐसी मैपिंग वो असाइन हो रही है, किसको असाइन हो रही है, T को असाइन हो रही है, एंड दिस T मैपिंग इज बिलोंग्स टू द L ऑफ VV एंड इट्स मैट्रिक्स, किसका मैट्रिक्स, द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T का मैट्रिक्स विथ रिस्पेक्ट टू द बेसिस V1, V2 एंड Vn, V1, V2 एंड Vn, वो क्या होगा, इट इज एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस L ऑफ V। आइसोमॉर्फिज्म क्या होगा गाइस, द मैट्रिक्स, ओके, onto the vector space Mn of F, okay, onto the vector space Mn of F. That means this mapping is from L of VV to Mn of F of all n by n matrices viewed as the vector space of n square tuples, okay, and Mn of F is an n square dimensional vector space. So it is a n square dimensional vector space, guys. So this is the basics. Now remark, this is the first remark, if a1 a2 an square, अब हमने क्या पढ़ा, mn of f, ये क्या है, n स्क्वायर डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, दैट्स व्हाई इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे गाइस, n स्क्वायर, ओके। सो a1 a2 an स्क्वायर इज ए बेसिस फॉर mn of f। ये किसका बेसिस हुआ, mn of f फील्ड का ओवर द फील्ड f। देन the linear transformations t1 t2 up to tn square, okay, ये जो linear transformation से whose matrices with respect to the basis original basis v1 v2 vn are, वो क्या होंगे अब, a1 a2 an square respectively. That means with respect to the basis v1 we will get the matrix a1, okay, the matrix of t1 with respect to the basis v1 is a1, the matrix of T2, matrix of linear transformation T2 with respect to the basis V2 is A2. Okay, guys, in this way. And this will form a basis of L of VV over the F. कौन form करेगा basis? This T1, A1, A2, N square. Okay, it is a basis of Mn of F. Then the linear transformation T1, T2, Tn square. Okay, this T1, T2, Tn square set will be form a basis for L of V. Okay, so L of VV का basis कौन होगा, T1, T2, Tn square. In particular, the matrices which have a 1 in one position, that means ऐसे matrices हो गए, उसको क्या होगा, वन नंबर होगा at one position and zeros elsewhere, which will form a basis for Mn of F. Therefore, the linear transformations
Tij belongs to the L of Vv defined by, कैसे डिफाइन किए गए वो, Tij of Vj is equal to some Vi numbers, okay, and Tij of Vk is equal to 0 for k is not equal to j, k की वैल्यू j के बराबर नहीं होगी, and which will form a basis of L of Vv over the field f kinds. Okay, I hope all of you understood. These are the basic concepts. Now, remark second. What is the remark second, guys? Let capital T be a fixed linear transformation. T क्या है हमारा? Fixed linear transformation है किसका? वेक्टर स्पेस V का. Since L of Vv has dimension n square, हमें पता ही है L of Vv में कितने एलिमेंट्स है? n square एलिमेंट्स है, तो उसका डायमेंशन कितना होगा गाइस? n square ही होगा over the field F. Therefore, the n square plus powers of t के अगर हमने n square plus powers लिए, n square plus 1 पावर्स लिए, तो क्या होंगे? 1 उसमें ऐड हो जाएगा. दैट मीन्स टी स्क्वायर अप टू टी एन स्क्वायर, ये तो हमारे थे ही इसमें एल ऑफ वी में, लेकिन हमने क्या किया? 1 ऐड कर लिया. 1 टी स्क्वायर एंड दैट इज टी एन स्क्वायर. हम अगर इसको काउंट करेंगे तो एन स्क्वायर तो ए एलिमेंट हो ही गए, और उसमें +1 एलिमेंट ऐड हो रहा है. दैट इज n square plus 1 powers of t, and these powers are linearly dependent, guys. That means if we take a linear combination of these linear transformations with some scalars from field F, then we will get the scalars not all zero. That means these are linearly dependent. So therefore, that means there exist elements of F xi naught, xi 1 up to xi n square. Okay, so this is not xi square, guys. This is n square. Write it here. Okay, I have wrong there. So xi n square, not all zero, such that, okay, ये not all zero होगी, such that this linear combination xi naught plus xi 1 into t plus xi 2 into t square plus xi n square into t n square is equal to 0. ये linear combination हमें 0 मिलेगा, लेकिन उसमें ये जो xi 1 xi naught xi n square ये all 0 नहीं होंगे. Okay, that's why these linear transformations are linearly dependent, guys. So in other words, there exists a non-zero polynomial. Okay, other words में से कैसे कह सकते हैं? There exists a non-zero polynomial f of x that is equal to xi naught plus xi 1x plus xi n square into x n square, and this polynomial is belongs to the field f of x such that f of t is equal to 0. अगर हम f of t लेंगे तो हमें क्या मिलेगा गाइस? ये मिलेगा, ये एक्सपांशन मिलेगा, और ए एक्सपांशन क्या है गाइस? इक्वल टू 0 है, तो हमें 0 ही मिलेगा. ओके, so this is the basic concept, guys. Now we will see the definition. So this is the definition. Let f of x is equal to, now we have given the polynomial f of x is equal to lambda 0 plus lambda 1 x plus lambda r into x raised to r, and this polynomial belongs to the field f of x. ये किस में है गाइस? f of x फील्ड में है. एंड लेट टी बिलोंग्स टू एल ऑफ वीवी. टी क्या है? हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो किस में बिलोंग हो रहा है? एल ऑफ वीवी में. देन एफ ऑफ टी डिनोट्स द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. एफ ऑफ टी क्या करेगा? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिनोट करेगा, और वो कैसे होगा? देखो, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लैम्बडा 0 इंटू 1 प्लस लैम्बडा 1 इंटू टी प्लस लैम्बडा आर इंटू टी रेस टू आर. दैट मीन्स गाइज वी रिप्लेस दिस एक्स बाय टी. एक्स को किससे रिप्लेस किया? टी से रिप्लेस किया फॉर दिस f of x. Okay, now here 1 is the identity transformation. ये जो 1 है ये क्या है? आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, एंड इट इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. टी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अप टू टी रेस टू आर भी क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. सो 1 is the linear identity transformation on vector space V, guys. So this is the definition. Now note, we may define f of a. अब हम मैट्रिक्स में भी डिफाइन कर सकते हैं. ये तो पॉलिनोमियल थी, पॉलिनोमियल को हमने किस में लिखा? किसके फॉर्मेट में लिखा? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मेट में. दैट मीन्स पॉलिनोमियल होगी तो उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी सेटिस्फाई करेगा, और उसको
टी का विथ रिस्पेक्ट टू सम बेसिस मैट्रिक्स जो हम निकालते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू द बेसिस मैट्रिक्स जो निकालते हैं, दैट मैट्रिक्स ए आल्सो सेटिस्फाइज दैट पॉलिनोमियल, वो भी क्या करेगा, पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। देखो कैसे, वेयर ए इज एन n by n मैट्रिक्स, ए क्या है, n by n मैट्रिक्स है ओवर द फील्ड एफ विथ वन रिप्लेस्ड बाय द आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, दैट मीन्स हम इसकी जगह पे ए भी डाल सकते हैं और लैम्बडा 0 × 1 की जगह पे हम क्या डालेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स डालेंगे गाइस। क्यों आइडेंटिटी मैट्रिक्स डालेंगे, क्योंकि एम एन ऑफ एफ ये जो फील्ड है इसमें, सॉरी एम एन ऑफ एफ ये जो सेट है इसमें आई जो है वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन किसका, वेक्टर स्पेस एम एन ऑफ एफ का। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन इंस्टेड ऑफ 1 आई and then lambda 1 into a plus 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 lambda r into a raised to power r, हम ऐसा भी ले सकते हैं, ये हमें आगे काम आएगा गाइस। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे लेमा गाइस। दिस इज द लेमा, हियर एल इज नॉट देयर, आप लिख लीजिएगा, एल दिख नहीं रहा होगा आपको। ओके, सो व्हाट इज द लेमा, लेट टी बिलोंग्स टू कैपिटल एल ऑफ वी वी, टी हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो किस में बिलोंग हो रहा है, एल ऑफ वी वी में बिलोंग हो रहा है। एंड let f and g are these two polynomials and which are belong to the polynomial ring f of x, then हमें शो करना है ये तीनों प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी है f of t into t is equal to t into f of t। सेकेंड प्रॉपर्टी का f plus minus g of t is equal to f of t plus minus g of t, and the third property is f into g of t is equal to f of t into g of t। तो हमें ये दिखाना है, इट्स वेरी इजी। फर्स्टली प्रूफ, तो प्रूफ में फर्स्ट हम बोलेंगे t बिलोंग्स टू द एल ऑफ वी, टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और वो किस में बिलोंग हो रहा है, एल ऑफ वी वी में बिलोंग हो रहा है। एंड लेट एफ ऑफ एक्स, हम पॉलिनोमियल लिखेंगे, दो हमें दिए गए हैं, एफ एंड जी बिलोंग्स टू द कैपिटल एफ ऑफ एक्स, तो हम दो पॉलिनोमियल लेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा नॉट प्लस अल्फा वन एक्स प्लस 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 अल्फा आर इंटू एक्स टू आर, एंड जी ऑफ एक्स की वैल्यू लेंगे बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स प्लस 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 बीटा एक्स इंटू एक्स रेस टू यस, दीज आर दी टू पॉलिनोमियल्स एंड विच आर बिलोंग्स टू द फील्ड एफ ऑफ एक्स। ओके, फील्ड कैपिटल एफ ऑफ एक्स, so it is the field of polynomial। now first हमें शो करना है, that is f of t into t। okay, so f of t, इसका मतलब क्या हुआ, x की जगह पे हम क्या रिप्लेस करेंगे, ओनली t रिप्लेस करेंगे। देखो इधर अल्फा नॉट प्लस अल्फा वन इंटू एक्स, एक्स की जगह पर t प्लस 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 अल्फा आर इंटू टी रेस टू आर, ओके, इंटू टी इंटू टी। अब हम क्या करेंगे गाइस, ये जो t है ये अप्लाई कर देंगे हर एक के ऊपर। So alpha naught into t, alpha 1 into t of t, and plus 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 alpha r into t raised to r of t। ओके, अब हमें ये पता है अगर कोई स्केलर t को मल्टीप्लाई हो गया तो उसका हम क्या कर सकते हैं, और ये इधर उधर भी चेंज कर सकते हैं, दैट इज कम्यूटेटिव, और दिस टी हम इधर ला सकते हैं, सो दैट इज अ टी इंटू अल्फा जीरो प्लस टी इंटू अल्फा वन इंटू टी, ओके, प्लस 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 टी इंटू अल्फा आर इंटू टी रेस टू पावर आर। उस टी को सिर्फ इधर लेके आना है। ओके, एंड इसमें से अब हम टी कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या मिलेगा गाइस, अल्फा नॉट प्लस अल्फा वन इंटू टी प्लस 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 अल्फा आर इंटू टी रेस टू पावर आर, एंड ये किसकी वैल्यू गाइस, एफ ऑफ टी की वैल्यू है, एंड दैट इज टी इंटू एफ ऑफ टी। हो गया ये शो गाइस, इधर क्या था, एफ ऑफ टी इंटू टी इज इक्वल टू टी टाइम्स एफ ऑफ टी गाइस। ओके, एंड वी हैव शोन दिस। तो ये फर्स्ट प्रूफ। सेकेंड, अब सेकेंड क्या देना दिखाना है, एफ प्लस माइनस जी ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस माइनस जी ऑफ टी। ओके, तो देखो एफ प्लस माइनस जी ऑफ टी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एफ एंड जी आपके पास वैल्यूज है, एफ की वैल्यू क्या है, अल्फा जीरो अल्फा वन, ओके, अल्फा जीरो प्लस अल्फा वन इंटू एक्स, ओके, एंड प्लस 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 कहाँ तक है, ऐसी अल्फा आर इंटू एक्स रेज टू पावर आर, ओके, एंड जी की वैल्यू है बीटा जीरो प्लस बीटा वन इंटू एक्स, ओके, प्लस 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 कहाँ तक है,
बीटा s into x raised to power s. Okay, so that is a b alpha r into x raised to r है. Okay, so these are the polynomials guys. मैं क्या करूंगा अब f plus g दोनों की एडिशन करनी है ना, so कांस्टेंट टर्म ऐड करूंगा, that is अल्फा नॉट प्लस बीटा नॉट. ओके, देन प्लस अब क्या है x की टर्म में ऐड करूंगा, that is this अल्फा वन एंड बीटा वन. तो अल्फा वन प्लस बीटा वन इंटू एक्स, लेकिन एक्स की जगह पे हमें क्या पुट करना है, टी पुट करना है, तो इंटू टी प्लस. अब नेक्स्ट वाला क्या आएगा, अल्फा टू. ओके, तो अल्फा टू प्लस बीटा टू दैट इज एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट था एंड इसलिए मैंने टी स्क्वायर लिखा. अब लास्ट तक कहाँ तक जाएगा, ये अल्फा आर है और ये बीटा एस है, तो ये दोनों सेम ही रहेंगे गाइस. ये मैंने इसलिए लिया है कि ये सेम ऊपर बीटा एस इंटू एक्स रेस टू एस, तो दोनों पॉलिनोमियल जो है वो सेम नहीं लगनी चाहिए, इसलिए एस ले लिया. लेकिन अगर आपको एडिशन करनी है तो दोनों टर्म्स सेम रहनी चाहिए. ओके, सो बी एस इंटू एक्स रेस टू एस, उसको हम आर में कंसिडर कर लेंगे. ओके, सो दिस इज अल्फा जीरो प्लस प्लस प्लस. नहीं तो अगर आपको पता नहीं है, ओके, अगर आप दोनों अगर सेम है, इधर भी आर पावर आती है इधर भी आर पावर आती है, दैट इज अल्फा आर एंड बीटा आर, देन हम वहां तक एडिशन स्टॉप कर सकते हैं. लेकिन हमें पता नहीं है कि ये आर टर्म्स कहाँ तक जाएंगी एंड ये एस टर्म कहाँ तक जाएंगे, सो आगे सिर्फ प्लस 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 कर देना. ओके, प्लस 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 कर देना, वो हमें पता नहीं है कि कितने टर्म्स है इसमें. ओके, सो देखो अब अल्फा नॉट प्लस बीटा नॉट प्लस अल्फा वन इंटू टी प्लस बीटा वन इंटू टी. ओके, दोनों को सेपरेट कर दिया. नेक्स्ट क्या आएगा, अल्फा टू इंटू टी स्क्वायर प्लस बीटा टू इंटू टी स्क्वायर, ऐसा चलता ही रहेगा, उसके एडिशन वो करता ही रहेगा. ओके, देन दैट इज इक्वल टू दिस इज अल्फा जीरो प्लस, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अल्फा अल्फा की जो टर्म्स है वो कलेक्ट करूंगा एक ब्रैकेट में, दैट इज अल्फा जीरो प्लस अल्फा वन टी. ओके, नेक्स्ट क्या है, अल्फा टू टी स्क्वायर प्लस 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 अब इनफाइनाइट तक जाएगा. ओके, ये फर्स्ट ब्रैकेट में मैंने लिख लिया इधर. ओके, अच्छे से. देन अब सेकेंड ब्रैकेट में प्लस लिखूंगा मैं, बीटा जीरो. ओके, देन बीटा वन इंटू टी बीटा की टर्म, बीटा टू इंटू टी स्क्वायर एंड सो ऑन. ओके, सो बीटा जीरो प्लस बीटा वन इंटू टी प्लस 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 अप टू सो ऑन. सो हमें क्या मिला, ये इसका मतलब क्या हुआ, ये फर्स्ट का मतलब क्या हुआ, दिस इज एफ ऑफ टी एंड सेकेंड का मतलब क्या होगा, जी ऑफ टी. एफ प्लस जी ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी, इसको हम इक्वेशन वन बोल देंगे. सिमिलरली अगर हम ऐसा ही काउंट करेंगे, सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, एफ माइनस जी ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस जी ऑफ टी. मैं इसको इक्वेशन टू बोल रहा हूँ. ओके, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है गाइस, ये ऑब्वियसली आ जाएगा क्योंकि प्लस एंड माइनस दोनों का जो ऑपरेशन है वो सेम ही होता है, दैट्स व्हाई. सो बाय इक्वेशन वन एंड टू आप क्या बोल सकते हो, एफ प्लस माइनस जी ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस माइनस जी ऑफ टी, और ये आपने प्रूव कर दिया. अब लास्ट वाला जो है एफ इंटू जी वाला, ओके, तो उसको कंसिडर करेंगे एफ इंटू जी ऑफ टी, एफ इंटू जी ऑफ टी. सो अब देखो गाइज, इधर थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, दैट मीन्स आपको दो पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट लेना है. ओके, दो पॉलिनोमियल्स का क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है. पहले मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ इधर. ओके, so I will rub these first so that you will be understood how it's. Okay, now let us take, so first polynomial क्या है हमारे पास, अल्फा जीरो. ओके, देन प्लस अल्फा वन इंटू एक्स. ओके, प्लस 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 AC कहाँ तक है, अल्फा आर इंटू एक्स रेज टू पावर आर. ओके, देन सेकेंड वाली कौन सी है, बीटा जीरो प्लस बीटा वन इंटू एक्स. ओके, बीटा वन इंटू एक्स प्लस 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 अप टू कहाँ तक है, बीटा एस इंटू एक्स रेज टू पावर एस का. ओके, अब क्या करना है guys? आपको प्रोडक्ट लेना है. अगर प्रोडक्ट लेना है तो आप पहले क्या लोगे, पहले क्या लोगे, अल्फा नॉट लोगे. ओके, अल्फा नॉट इसका प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे, ये पूरी पॉलिनोमियल के साथ करेंगे. देन अल्फा वन इंटू एक्स लेंगे, उसका प्रोडक्ट इस पूरी पॉलिनोमियल के साथ. अल्फा ऐसा कहाँ तक जाएंगे, अल्फा आर एक्स टू आर तक, उसका प्रोडक्ट इस पूरी पॉलिनोमियल के साथ. तो पहले अगर मैंने अल्फा नॉट ले लिया तो मुझे क्या मिलेगा, अल्फा नॉट
into this total polynomial. ओके, मैं अब कलर चेंज करता हूँ, दैट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। देखो, सो आई हैव चेंज द कलर नाउ, सो आई मल्टीप्लाइड दिस बाय अल्फा जीरो। सो मुझे क्या मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करते जाना है। ओके, अल्फा जीरो इंटू बीटा जीरो, तो फर्स्ट टर्म मिली, प्लस अल्फा जीरो इंटू बीटा वन। ओके, अल्फा जीरो इंटू बीटा वन प्लस सॉरी अल्फा जीरो इंटू बीटा वन इंटू एक्स मिलेगा। ओके, so this is alpha 0 into beta 1 into x. देन नेक्स्ट टर्म में जब हम अल्फा 1 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा 1 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर क्या मिलेगा, अल्फा 1 इंटू एक्स से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों का छोड़ दो, लेकिन अब क्या मिलेगा, देखो अल्फा 1 इंटू बीटा 1 इंटू एक्स, so that's why we have taken, और इधर और एक आएगा, दैट इज दिस अल्फा 1 इंटू बीटा नॉट। ओके, अल्फा 1 इंटू एक्स है और अल्फा 1 इंटू बीटा नॉट और उसकी टर्म एक्स, तो अल्फा 1 इंटू बीटा नॉट इंटू एक्स। इन दोनों में से अगर आपने एक्स कॉमन निकाल लिया तो क्या मिलेगा, अल्फा जीरो बीटा वन प्लस अल्फा वन बीटा जीरो। देखो, अल्फा जीरो बीटा वन प्लस अल्फा वन बीटा जीरो एंड इंटू एक्स से, इसलिए मैंने क्या लिखा, टी लिखा। ओके, सो नेक्स्ट टर्म जो है दैट इज टी स्क्वायर की और एक्स स्क्वायर की, वो कैसे आएंगी, दैट इज अल्फा जीरो इंटू बीटा टू प्लस अल्फा वन इंटू बीटा वन। ओके, सो ये अल्फा जीरो है, इधर क्या होगा, बीटा टू इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, बीटा टू इंटू एक्स स्क्वायर, सो क्या मल्टीप्लाई हुआ, अल्फा जीरो इंटू बीटा टू। ओके, एक्स स्क्वायर रहेगा, देन इधर देखो, इधर कौन सी टर्म होगी, अल्फा वन इंटू बीटा बीटा वन। ओके, ये पहले वाला इधर एक्स बीटा वन का एक्स है ना, अल्फा वन इंटू बीटा वन प्लस अल्फा टू इंटू बीटा जीरो एंड देन टी स्क्वायर। एक एक टर्म ऐसी बढ़ती जाएगी। आपको अगर मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल आता है तो ये अच्छे से आप लिख सकते हो। ओके, इंटू टी स्क्वायर एंड ये आगे चलता जाएगा। ओके, सो दिस इज अल्फा जीरो इंटू बीटा जीरो प्लस अल्फा जीरो इंटू बीटा वन ऑफ टी। अब इसको सेपरेट कर रहा हूँ मैं, देन अल्फा जीरो इंटू बीटा वन ऑफ टी प्लस अल्फा वन इंटू बीटा जीरो ऑफ टी प्लस अल्फा जीरो इंटू बीटा टू ऑफ टी टी स्क्वायर प्लस अल्फा वन इंटू बीटा वन ऑफ टी स्क्वायर प्लस अल्फा टू इंटू बीटा जीरो ऑफ टी स्क्वायर एंड सो ऑन। ओके, अब मैं क्या करूंगा गाइज, अल्फा वन की जो टर्म्स है उसको मैं कलेक्ट कर लूंगा एक ब्रैकेट में एंड अनदर ब्रैकेट मल्टीप्लाई में बीटा जीरो की टर्म्स को कलेक्ट करूंगा। देखो, मल्टीप्लिकेशन है ना, तो मैं करूंगा अल्फा जीरो, देन क्या मिलेगा मुझे, ये अल्फा जीरो हो गया, देन अल्फा वन इंटू टी, ओके, प्लस अल्फा टू इंटू टी स्क्वायर, ओके, देन अल्फा थ्री इंटू टी क्यूब एंड सो ऑन। नेक्स्ट में मैं क्या करूंगा, बीटा जीरो प्लस बीटा वन इंटू टी प्लस बीटा टू इंटू टी स्क्वायर। अगर आपको ये कैसे आया पता नहीं है, तो ये अल्फा जीरो से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगा, आपको क्या मिलेगा, देखो। ओके, तो हम देखते हैं क्या मिलेगा। फर्स्टली मैं रब करता हूँ। ओके, देखो, हमें मल्टीप्लाई करना है, अगर मल्टीप्लिकेशन आ गया तो समझ लेने का कि हम राइट वे से जा रहे हैं। नाउ लेट अस सी, अल्फा जीरो से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना। ओके, तो क्या मिलेगा, अल्फा जीरो इंटू बीटा जीरो, आ गई फर्स्ट टर्म, देन अल्फा जीरो इंटू बीटा वन टी, देखो अल्फा जीरो इंटू बीटा वन ऑफ टी, देन नेक्स्ट क्या आएगी, अल्फा जीरो इंटू बीटा टू ऑफ टी स्क्वायर। ओके, ये देखो अल्फा जीरो इंटू बीटा टू ऑफ टी स्क्वायर आ गई टर्म, देन ऐसे आगे जाते रहेंगे। अब अल्फा वन इंटू टी से मल्टीप्लाई करना। ओके, तो अल्फा वन इंटू टी इंटू बीटा जीरो, तो क्या मिलेगा, अल्फा वन इंटू बीटा जीरो ऑफ टी, देखो अल्फा वन इंटू बीटा जीरो ऑफ टी, देन सेकेंड टर्म को अगर मल्टीप्लाई किया तो अल्फा वन इंटू बीटा वन टी स्क्वायर, देखो अल्फा वन इंटू बीटा वन टी स्क्वायर,
नेक्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा 1 इंटू बीटा 2 टी क्यूब आ जाएगा, वो आगे चलती चलती। ये वाली टर्म देखो, अल्फा 2 इंटू टी स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा? सो अल्फा 2 इंटू बीटा 0, इधर है क्या, अल्फा 2 इंटू बीटा 0 इंटू टी स्क्वायर, यस दिस टी स्क्वायर। नेक्स्ट में क्या आएगा, अल्फा 2 इंटू बीटा 1 इंटू टी, ओके, अल्फा 2 इंटू बीटा 1 इंटू टी, वो आगे टर्म्स आती जाएगी। सो दिस इज द थिंग, दैट्स व्हाई हमने ये लिखा। एंड इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ब्रैकेट का मतलब हुआ एफ ऑफ टी, एंड सेकेंड ब्रैकेट का मतलब हुआ जी ऑफ टी। ओके, सो हमने प्रूव किया है एफ इंटू जी ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी इंटू जी ऑफ टी, एंड हियर इज द थ्योरम। तीनों प्रॉपर्टी जो है वो हमने प्रूव की। तो ये लेमा था, अब इस लेमा के थ्योरम में यूज करना है। सो नेक्स्ट थ्योरम गाइस, देखो इसमें इंफॉर्मेशन ही बहुत ज्यादा है, आपको थोड़ी सी दो ही स्टेटमेंट जो है जो शो करना। लेट टी बिलोंग्स टू एल ऑफ वी वी, टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और वो एल ऑफ वी वी में बिलोंग होता है। देन दिस वन टी स्क्वायर अप टू टी रेस टू एन स्क्वायर आर लीनियरली डिपेंडेंट, ये हमने ऊपर देखा फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट में। So linearly dependent in L of VV. So therefore there exists a uniquely determined integer. इससे uniquely determined integer exist होगा, उसको हम बोल रहे हैं R, and वो R जो होगा वो less than equal to the n square होगा। That means इसके less और equal भी हो सकता है, such that this 1 t square up to t raised to r minus 1 are linearly independent। देखो ये जो एन स्क्वायर तक टी टर्म्स जो थी वो क्या थी, लीनियरली डिपेंडेंट, लेकिन ऐसा एग्जिस्ट हो रहा है इंटीजर आर एंड विच इज लेस देन इक्वल टू एन स्क्वायर होगा। सो ये जो सेट है 1 t स्क्वायर अप टू टी रेस टू आर माइनस 1, ये क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। एंड 1 t स्क्वायर टी रेस टू आर माइनस 1 एंड टी रेस टू आर, ओके, वो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। देन वी हैव ये जो टी रेस टू आर है, ये टी रेस टू आर कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 t स्क्वायर एंड टी रेस टू आर माइनस 1, ये हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में पढ़ा है। ओके, अगर कोई भी वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसको उसके वन वेक्टर को हम द लीनियर उसके वन वेक्टर को हम लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द अनदर वेक्टर। ओके, तो अनदर वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में उस वेक्टर को लिख सकते हैं। दैट टी रेस टू आर कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग वेक्टर दैट आर 1 t स्क्वायर अप टू टी रेस टू पावर r minus 1 guys, and all these xi naught xi 1 xi r minus 1 belongs to the field here। Okay, now let m of x is equal to x raised to power r minus xi r minus 1 into x raised to r minus 1 minus 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 xi 0 into 1, this is belongs to f of x। ये जो पॉलिनोमियल m of x है ये किस में बिलोंग हो रही है गाइस, कैपिटल f of x में बिलोंग हो रही है। देन m of x हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, ये जो पॉलिनोमियल हमने डिफाइन की है उसको दो प्रॉपर्टीज है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी गाइस, ये m of x जो है ये नॉट इक्वल टू जीरो रहेगी, किसमें, फील्ड एफ ऑफ एक्स में। एंड अगर हमने लिया एम ऑफ टी तो हमें मिलेगा जीरो, बिकॉज दीज ऑल वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट गाइस। कौन से, ये वाले देखो, ये वाले सब वेक्टर्स क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ऑब्वियसली ये जो एम ऑफ एक्स है वो क्या है, इट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से। ओके, लेकिन जो अदर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से 1 t स्क्वायर अप टू टी रेस टू आर माइनस 1 तक, वो क्या है गाइस, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है उसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो ऑब्वियसली एम ऑफ टी जीरो हो जाएगा गाइस। And second statement, if f of x is any polynomial in capital F of x, अगर small f of x ऐसी कोई भी polynomial exist हो रही है f of x में, such that f of t is equal to zero, f of t is equal to zero है and ऐसी polynomial exist हो रही है in f of x में, then this m of x will be divided to f of x in the capital F of x। तब क्या करेगी, m of x जो पॉलिनोमियल है वो f of x को डिवाइड करेगी गाइस। ओके, so let us see the proof is very easy। Let
कैपिटल टी बिलोंग्स टू एल ऑफ वी वी। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है वो किस में बिलोंग हो रहेगा, एल ऑफ वी वी में। सो लेट टी रेस टू आर इज इक्वल टू, ये हमें गिवन दिया गया झाई जीरो प्लस झाई वन इंटू टी प्लस 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 झाई आर माइनस वन इंटू टी रेस टू पावर आर माइनस वन फॉर ऑल झाई आई बिलोंग्स टू द कैपिटल एफ। ये हमें गिवन है। एंड एम ऑफ एक्स पॉलिनोमियल भी दी गई है, कौन सी है वो, एम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर आर माइनस झाई आर माइनस वन इंटू एक्स रेस टू आर माइनस वन प्लस प्लस सॉरी माइनस 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 xi 0 into 1, and this m of x is not equal to 0. This is belongs to the capital f of x. Okay, then हम अब हम फाइंड करेंगे m of t। क्या फाइंड करेंगे गाइज, m of t फाइंड करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, m of t इज इक्वल टू t रेस टू r। ओके, मीन्स x की जगह पे हम ओनली t पुट करेंगे, m of x that is minus xi r minus 1 into t raised to r minus 1 up to so on xi 0 into 1 that is equal to t raised to r minus, ये जो ब्रैकेट में जो टर्म्स है गाइस इसमें से माइनस साइन हम निकाल लेंगे तो सब टर्म्स प्लस 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 हो जाएंगी। ओके, तो क्या मिलेगा, xi 0 प्लस xi 1 इंटू टी प्लस xi 2 इंटू टी स्क्वायर xi 3 इंटू टी क्यूब अप टू सो ऑन xi r माइनस 1 इंटू टी रेस्ट टू r माइनस। लेकिन हमने ऊपर लिया है, क्या लिया है और गिवन है 1t t² अप टू टी रेज़ टू r माइनस 1। ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से वो क्या है गाइस, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये क्या हो गया, इट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दैट लीनियरली इंडिपेंडेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन है लीनियरली इंडिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन का, तो ये हमें क्या मिलेगा, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो मिलेगा गाइस। So it is a zero minus zero. तो क्या मिलेगा, मिला only t raised to r since this 1t raised to r minus 1 are linearly independent and इसकी वैल्यू क्या है अगेन, xi 0 प्लस xi 1 इंटू टी प्लस 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 xi r माइनस 1 इंटू टी रेस्ट टू r माइनस 1, यही वैल्यू है। सो अगेन ये क्या है, अकॉर्डिंग टू द लीनियरली इंडिपेंडेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिस इज अगेन जीरो, ये भी क्या हो जाएगा जीरो। सो एम ऑफ टी हमें क्या मिला गाइस, जीरो मिल गया। ओके, सो अब हमें सेकेंड पार्ट प्रूव करना है। तो नाउ लेट एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू द कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ऐसी पॉलिनोमियल एग्जिस्ट हो रही है सच दैट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो। ओके, बिकॉज दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, sorry linearly independent linear transformations, not vector 1 t t square and t raised to r minus 1. So there does not exist a polynomial r of x not equal to 0। ऐसी कोई polynomial exist नहीं होगी r of x o की क्या होगी, जीरो होगी। सो ऑफ डिग्री लेस देन आर, उसकी डिग्री क्या होगी, लेस देन आर सच दैट आर ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो। तो ऐसी पॉलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं होगी। सो नाउ अप्लाई द डिवीजन प्रोसेस टू एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स पे क्या अप्लाई करना है, डिवीजन प्रोसेस अप्लाई करना है एफ ऑफ एक्स एंड एम ऑफ एक्स पे। सो हमें क्या मिलेगा, वी गेट दिस एफ ऑफ एक्स जो पॉलिनोमियल है वो कैसे रिटर्न करके आएगी हमें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम ऑफ एक्स इंटू सम क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। इसको हम इक्वेशन 1 बोलेंगे, वेयर ये आर ऑफ एक्स जो है वो जीरो है और डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स is less than r and that is equal to degree of m of x का। ओके, सो इससे हम r of x की वैल्यू निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से। सो r of x इज इक्वल टू f of x माइनस m of x इंटू q of x। सो ये जो टर्म है इधर ट्रांसफर कर दी ओनली। ओके, प्लस की माइनस हो जाएगी। देन अब देखो ये जो r है वो बाहर लिख सकते, सॉरी x जो है वो बाहर लिख सकते, दैट इज m माइनस m इंटू क्यू ऑफ x। अब हमें क्या करना है, x की जगह पे t पुट करना है। सो r ऑफ t इज इक्वल टू दिस f माइनस m इंटू क्यू ऑफ t दैट इज इक्वल टू f ऑफ t माइनस m ऑफ t इंटू क्यू ऑफ t। ओके, लेकिन हमारे पास अब क्या है, m ऑफ t इज इक्वल टू जीरो है। ओके, m ऑफ t इज इक्वल टू जीरो है। सो जीरो इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और एफ ऑफ टी अभी गिवन है दैट इज जीरो। जीरो माइनस जीरो क्या होगा, जीरो। सो ऑब्वियसली दिस आर ऑफ टी विल बी जीरो। ओके, सिंस आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इन एफ ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स। आर ऑफ एक्स अगर जीरो है हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या होगा,
ये क्यू ऑफ एक्स इधर ट्रांसफर कर दो एफ ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स, तो इट इक्वल टू एम ऑफ एक्स। इसका मतलब हुआ दिस पॉलिनोमियल एम ऑफ एक्स डिवाइड्स एफ ऑफ एक्स। ओके, पॉलिनोमियल डिवाइड्स एफ ऑफ एक्स, हेंस द थ्योरम, दोनों स्टेटमेंट प्रूव हो गए। ओके, सो नेक्स्ट इज डेफिनेशन। What is the definition, guys? Let capital T belongs to L of VV, the polynomial m of x belongs to capital F of। So T क्या है हमारे पास? It is a linear transformation। वो किस में बिलोंग हो रहा है? L of VV में। एंड polynomial है हमारे पास, it is m of x। ओके, m of x belongs to the f of x। ये polynomial जो है ये किस में बिलोंग हो रही है? फील्ड f of x में। एंड दिस m of x is called मिनिमल polynomial। ओके, अब जो ये m of x है उसको हम क्या कहेंगे? मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल टी। ओके, and when this m of x is characterized as the non-zero polynomial of least degree such that m of t is equal to 0। ओके, ये क्या होनी चाहिए? कैरेक्टराइज होनी चाहिए। कैरेक्टराइज किस कैसे होनी चाहिए? एज द नॉन जीरो पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री। किसमें कैरेक्टराइज होनी चाहिए? नॉन जीरो पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री में, सच दैट हमें क्या मिलना चाहिए? एम ऑफ टी इज इक्वल टू 0 मिलना चाहिए। एंड इट इज यूनिकली डिटरमाइंड, और ये जो एम ऑफ एक्स है वो यूनिकली डिटरमाइंड होनी चाहिए अप टू द कांस्टेंट फैक्टर वैल्यू। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल। इसको अच्छी तरह से पढ़ना। ये जो मिनिमल पॉलिनोमियल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है गाइस, तो इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। मिनिमल पॉलिनोमियल किसे कहना है? ऐसी पॉलिनोमियल एग्जिस्ट होगी एम ऑफ एक्स, ताकि उसमें वो क्या होनी चाहिए? कैरेक्टराइज होनी चाहिए किसमें? नॉन जीरो पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री में क्या होनी चाहिए? कैरेक्टराइज होनी चाहिए। और उसमें क्या होना चाहिए? एम ऑफ टी अगर हम लेंगे तो हमें 0 मिलना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट सी द रिमार्क। The above theorem also holds for any matrix। That means हमने above theorem लिया, वो polynomial के लिए नहीं लेकिन मैट्रिक्स के लिए भी होल्ड हो सकता है। That means A belongs to the m of x, and if this T belongs to the L of VV has the matrix capital A with respect to the basis V1 V2 Vn of capital V। So ये जो थ्योरम था वो किसको होल्ड हो सकता है? मैट्रिक्स A को भी। दैट मीन्स f of A हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। एंड ये सेकेंड कंडीशन थी, कौन सी सेकेंड कंडीशन थी गाइस? लेट अस सी। ये जो एम ऑफ ए होगा, पॉलिनोमियल हम फाइंड करेंगे ना, एम ऑफ ए वो डिवाइड करेगा एफ ऑफ ए को। यस, so this is the remark 1। Remark 2, the linear transformation capital T and A, okay, the linear transformation capital T and the matrix of T with respect to the basis have same minimal polynomials। दोनों के क्या होगी? that means T को भी and A को भी, दोनों को क्या होगी guys? Same minimal polynomials होगी guys। So this is the thing that we have learned। So guys, आज के वीडियो के लिए इतना ही काफी है, बिकॉज हम जितना ज्यादा लेंगे वीडियो में उतना आप कंफ्यूज होंगे। सो इतना थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो इस वीडियो में हम कंक्लूड करने वाले हैं। आगे का जो एग्जांपल्स का पार्ट है मिनिमल पॉलिनोमियल के ऊपर के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम उसको क्या करेंगे? कवर अप करेंगे गाइस, ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना आए और आप अच्छी तरह से पढ़ सकोगे। So thank you for watching the video। We will meet into the next video with examples on minimal polynomial।